And I think this is the last nail in the coffin of electoral democracy here. پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی ریگنگ کر دی جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا، اور اس میں جتنی جیری مینڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو، اس کو اب بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا، شی ہیز بین ریوارڈڈ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے، میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسخ کیا جا رہا ہے، ڈیموکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے، یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، یہ سوچ کے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے، راجہ مہاراجاؤں کی تاناشاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان، ایک ڈیموکریٹک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنیں گے. مگر اس کے بعد جب کہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی، ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے ان ڈیموکریٹک طریقے سے، جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بالکل بھروسہ اٹھ گیا، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں میجورٹی آف دا الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بھروسہ نہیں تھا. اور 87 واز دا کلمنیشن آف آل دا الیکشنز، فراڈس آف الیکشنز، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے، جو بہت ہی امن پسند لوگ ہیں، انہوں نے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے، اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو ریڈ فورٹ سے یہ اعلان کرنا پڑا 2002 میں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم جموں کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. اور اس کے بعد الیکشن میں بہتری آئی اور جموں کشمیر کے لوگوں کا الیکشن پروسیس میں ایک بھروسہ ہو گیا. مگر جو ہم آج دیکھتے ہیں، جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ جموں کشمیر ایک لیبارٹری بن چکا ہے بی جے پی کے لیے. یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں، اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں. اور جتنا بھی جو بھی کچھ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ اس فساد میں ہو رہا ہے کہ ہم جموں کشمیر کو مکھیہ دھارا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کا انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے ساتھ. تو میرا تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ ملک کے لوگ جو دیش بھکت ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، کہ میں ان پارٹیز کی بھی بات کر رہی ہوں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی، قربانیاں دی اور اس ملک کو جمہوری سیکولر ملک بنایا. میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی، انگریزوں کے ساتھ مل کے رہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا. میں ان ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیے بی جے پی آپ کو ہر غلط کام، کانسٹیٹیوشن کو ملیامیٹ کر کے اس کو بھی نیشنلزم کا نام دیتی ہے. جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کریں. کچھ بھی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. انہوں نے 2019 کے بعد جموں کشمیر میں ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے 370 ہٹایا، 35 سے ہٹایا، اسپیشل پوزیشن ہماری ختم کی، انڈین کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا، اور یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. یہ سب بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر الیکشن میں انہوں نے جموں کشمیر کے پلاٹ بیچنا شروع کر دیا الیکشن میں کہ آپ کو پلاٹ ملے گا، ہم نے جموں کشمیر میں یہ کیا. اور آج جو جموں کشمیر ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے پورے ملک کے لیے، آج نہ صرف جموں کشمیر میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے. اب فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگنگ الیکشن کے دوران ہوتی ہے، جس میں ایلیگیشنز لگتے ہیں، ای وی ایمز کو استعمال کیا جاتا ہے، پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے، مسل پاور استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگنگ ہوتی ہے. اس گوا میں دیکھا آپ نے، کرناٹک میں دیکھا آپ نے، مدھیہ پردیش میں دیکھا، مہاراشٹر میں حال ہی میں دیکھا، اور ابھی جھارکھنڈ اور راجستھان لائن میں لگے ہیں، جہاں یہ پیسے کے بلبوتے پہ، پاور کے بلبوتے پہ، اور خاص کر ای ڈی جو ان کا اکلوتا الائنس پارٹنر ہے اس کے بلبوتے پہ ریگنگ کرتے ہیں اور رزلٹ اپنے حق میں کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ
न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात है। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे। और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो ख़त्म नहीं कर सका। इजराइल कितना भी जुल्म करे तो फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, तो वो जो बीजेपी के इविल डिज़ाइंस हैं जम्मू कश्मीर को लेके, वो उनको कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो वो हालात बना रहे हैं, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया, उसके बाद आप वहाँ नहीं रुके। उसके बाद आपने यहाँ के नौजवानों से उनकी ज़मीन छीनी, उनका रोज़गार छीना, उनके रिसोर्सेज छीने, उनकी आज़ादी छीनी, उनकी डिग्निटी छीनी, उनको जेलों में डाल दिया, उनका जीना हराम कर दिया। और अब एक उनके पास वोट का हक था। कश्मीर की समस्या का समाधान आज भी ढूंढना होगा, कल भी ढूंढना होगा। मगर मैं फिर से अपने मुल्क के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उनको गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी जो उन्होंने तरीक़ेकार अपनाए हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना। अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को
कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियाँ तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं, और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर ख़ास कर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑन स्लॉट किया हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूँगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिल के लड़ना चाहिए। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस प्लीज़? मैम, क्या ये लीगल है ये मूव इलेक्टोरल ऑफिस के अंदर 225 वोटर्स एनी इंडियन सिटीजन कैन वोट, whether it's from Labour, whether it's a government or anyone? Is this legal? It's not about the legality, it's about the the intention that is behind it. Intention तो बिल्कुल साफ है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं। यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो एक डेमोग्राफी, एक लोकल जो एलिमेंट है यहाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं। मुल्क में वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाना चाहते हैं, और जम्मू में जब लोग सवाल करते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरियों को सीधा कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट लीगैलिटी और इलीगैलिटी अबाउट इट, इट्स मोर अबाउट द इंटेंशन बिहाइंड इट। इलीगल भी है बिकॉज इसकी जो जननी है वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। बिल्कुल, वो तो उनको वो कर नहीं सकते थे जो उन्होंने 5 अगस्त को किया, दिस इज इन द सुप्रीम कोर्ट, और अभी वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे, डिलिमिटेशन नहीं कर सकते थे, बट स्टिल दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, वट एवर दे आर डूइंग इट इज ऑल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, मैंने अभी फारूक साहब से बात की, मैंने कहा चूँकि आप हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, प्लीज़ आप ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करें, तमाम जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाएं, ताकि जिनके साथ हमारे इख्तिलाफात भी हैं, जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इस वक्त ये जम्मू कश्मीर के लोगों के वजूद की बात है, सर्वाइवल की बात है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मीटिंग बुलाएं, वहाँ पर डिस्कस होगा कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। आपको नहीं लगा जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और टारगेट किलिंग्स भी जो पहले हो चुकी हैं काफ़ी, तो इस तरीके से जो भारी वोटर्स हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं फिर से? देखिए, अब ये इलेक्शन का मसला नहीं है, जो पार्टीज इलेक्शन करती रहती थी उनके लिए भी ये सबक है। मुझे लगता है हमें अब रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी तब तक बीजेपी जैसी जमातें इसका शॉर्टकट ढूंढती रहेंगी और इसको एक्सप्लॉइट करेंगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, जो इस वक्त बंदूक उठा रहे हैं, ज़्यादा लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं। हर एक खून की बूंद की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि जब पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हो गए तो उसके बारे में पूरे मुल्क में उन्होंने चर्चा की, मगर जब चाइना ने हमारे 20 नौजवान मार दिए गए, उनको शहीद किया, तो उस वक्त कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि उससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए जो कश्मीरी पंडित्स की पेन है, जो उनकी किलिंग है, टारगेट किलिंग है, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं या कोई और मारा जाता है, उसको वो खून जो है वो बीजेपी के लिए आज वोटर के उसमें शक्ल में उसको मुआवजा मिलता है। तो ये इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं, इट्स गॉन बियॉन्ड इलेक्शंस। मुझे लगता है कि हमारे तमाम पार्टीज़ को रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहिए, और जब कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो तब बीजेपी को जो है उसको, जब सारी जमातें एक ही जैसा फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस और ईवल एक उन्होंने तरीके का डिज़ाइन अपनाया हुआ है, उनको वो चेंज करना पड़ेगा। महबूबा जी, जब भी यहाँ इलेक्शंस होते थे, चाहे सेपरेटिस्ट की तरफ से या लोग खुद एक मकतबे की लोग थे यहाँ जो बाइकआउट कर सकते थे, उसकी अभी 25 लाख की तादाद आ गई। अब अगर इलेक्शंस होंगे, जो पहले से बाइकआउट करते थे, दोबारा उस पर और स्ट्रेस पड़ेगा 25 लाख की वजह से। तो मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेन स्ट्रीम का तो रोल ही खत्म हो गया। नहीं, दैट इज व्हाट दे वांट,
वही तो चाहते हैं, वो मेन स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बीजेपी में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ना, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके इस मुल्क के झंडे को भगवा झंडे में तब्दील करके बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। What will be the next step of the ministry? Because as you said that it was the last nail of it. हाँ बिल्कुल किया उन्होंने। मैंने कहा, मैंने फारूक साहब से इल्तिजा की है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और उसमें हम डिस्कस करें कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। थैंक यू।